شدید گرمی اور تیز دھوپ میں چک غریب کا سستا مگر مؤثر سہارا۔ ملتان میں ہیٹ ویو کا مقابلہ کرتی چکیں عوام کو ریلیف فراہم کرتی ہیں۔ روایتی چکیں بجلی کے مہنگے بلوں اور لوڈ شیڈنگ کے دوران سکون کا باعث کانوں اور تنکوں سے بنی چیک دھوپ میں چھاؤں جیسا احساس دیتی ہے۔ مزید بتائیں گی سہیرا طارق۔ جی بالکل، ملتان شہر کی شدید گرمی اور حبس کا جو موسم ہے اور اسپیشلی جو دھوپ کی شدت ہے اسے بچنے کے لیے شہری جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر کوششیں کرتے ہیں، اور جہاں پر عام عوام اے سی اور ایئر کولرز کا استعمال کرتے ہوئے بجلی کے مہنگے بلوں کی وجہ سے گھبراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا استعمال کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، وہیں پر تنکوں اور کانوں سے بنی ہوئی چیکیں جو کہ ایک روایتی اور قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہیں دھوپ کو روکنے کے لیے، گرمی کی شدت کو روکنے کے لیے، یہ چکیں جو ہیں وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بنائی بھی جا رہی ہے، ان کی سلائی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ گھروں میں، دفاتر میں اور کمروں کے باہر یا کھڑکیوں کے باہر جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں تاکہ اس گرمی سے محفوظ رہا جا سکے، گرمی اور سورج کی شعاؤں سے بچا جا سکے۔ یہاں پر دکاندار ہیں، مجھے بتائیے گا یہ چیک کیسے تیار ہوتی ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ السلام علیکم۔ یہ چیک کھانے کی ہے، سردی اور گرمی میں دھوپ سے بچاتی ہے، سردی میں سردی سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کپڑے دونوں سائڈ کپڑا اور نیوار دھاگا دھوگا اس کو لگا کر بنائی جاتی ہے۔ گرمی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آندھی جیسے آتی ہے اس کے لیے مٹی شٹی کے لیے روکنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور دھوپ کے لیے یہ گرمی سے بچاتی ہے۔ قیمت اس کی 40 روپے فٹ، 50 روپے فٹ، 60 روپے مربع فٹ ہوتی ہے۔ عام عوام ہے ان کے لیے یہ نہ صرف ایک سستا اور آسان حل ہے گرمی اور دھوپ سے بچنے کا، گھر کو محفوظ رکھنے کا۔ بہت شکریہ سہیرا طارق آپ کا۔ ایڈیشنل ڈی سی آر سید وسیم حسن نے مالی سال کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ جون 2024 سے جون 2025 تک 6,760 ملین کے سرکاری واجبات وصول کیے۔ سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 264.35 ملین کی وصولی کی۔ انتقال فیس کی مد میں 150.88 ملین کی ریکوری ہوئی۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں، ایڈیشنل ڈی سی آر سید وسیم حسن نے مالی سال کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ جون 2024 سے جون 2025 تک 6,760 ملین کے سرکاری واجبات وصول کیے۔ سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 264.35 ملین کی وصولی کی۔ انتقال فیس کی مد میں 1,050.88 ملین کی ریکوری ہوئی۔ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس پر ٹرینوں کی آمد میں تاخیر، مسافر انتظار کی اذیت میں مبتلا ہیں، مسافر مقررہ وقت پر منزل پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی بالکل، رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں جو ہیں وہ کچھوے کی رفتار کی طرح جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، جس کے بعد جو مسافر ہیں وہ اس شدید گرمی میں جو ہے وہ موسم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنوں کے ساتھ جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر کئی گھنٹوں کے انتظار کی اذیت میں مبتلا۔ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر اگر ٹرینوں کے متاثرہ شیڈول کو دیکھا جائے تو اس میں کراچی سے لاہور جانے والی ملت ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے، جعفر ایکسپریس جو کراچی سے راولپنڈی جاتی ہے 2 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے، ملت ایکسپریس جو لاہور سے کراچی جاتی ہے 2.5 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علامہ اقبال ایکسپریس جو لاہور سے سیالکوٹ جاتی ہے یہ بھی 2 گھنٹے بعد پہنچی ہے، جبکہ کراچی سے لاہور جانے والی فرید ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ پہنچی ہے، اور اسی طرح سے پاک بزنس جو کراچی سے لاہور جاتی ہے بھی 2 گھنٹے دیر پہنچی ہے۔ جو مسافر ہیں ہمارے ساتھ موجود ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلے تو بات ہے کہ سب سے زیادہ کہ گرمی کی شدید لہر ہے، 2-3 گھنٹے سے ہم یہاں اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرینوں کا کوئی معلومات نہیں ہے، مطلب یہاں سے لیٹ جائیں گے تو آگے ہم لیٹ پہنچ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ٹریکر کا تو ہے، ٹریک کبھی ان کی ایپ بند ہو جاتی ہے۔ 17 ایک انکوائری نمبر ہے جو پاکستان ریلوے نے دیا ہوا ہے، لیکن رحیم یار خان ریلوے اسٹیشن پر عرصہ دراز سے وہ نمبر بند ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کو کرنا چاہیے۔ سکھر ڈویژن کا سب سے زیادہ ارننگ دینے والا اسٹیشن ہے، اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کے پلیٹ فارم کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو مینٹیننس ہے اس پہ بھی مطلب کوئی توجہ نہ دینے کے برابر ہے۔ اس پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہیں سے مسافروں کی ایک بڑی تعداد سفر کرتی ہے دوسرے شہروں کو جانے کے لیے۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اسٹیشن کو بھی دیکھ بھال کی جائے اور ٹرینوں کی جو آمد و رفت ہے اس کو بھی جو اس کی رفتار، ٹرینوں کی جو آمد و رفت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، جس کے بعد مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، وہ اپنی منزل پر بھی تاخیر سے پہنچ رہے ہیں، موسم کی سختیوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے ریلوے حکام سے کہ ٹرینوں کے نظام میں بہتری لائی جائے تاکہ مسافروں کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ بہت شکریہ عامر بھٹی آپ کا۔ بڑھتی مہنگائی اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے پر جماعت اسلامی بہاولپور سراپا احتجاج بن گئی۔
अमीर जमात इस्लामी नसरुल्लाह नासिर कहते हैं कि गरीब इंसान का जीना मुश्किल हुआ है, हुक्मरानों को फिक्र नहीं। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे महमूद सुहेल, बताइएगा। बिजली, चीनी, पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर जमात इस्लामी बहावलपुर सरापा एहतजाज बनी है। इस सरापा एहतजाज के हवाले से क्या तफसीलात है? एक बार फिर महंगाई के खिलाफ सरापा है। जी बिल्कुल, एक बार फिर महंगाई के खिलाफ हम सरापा एहतजाज हैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान साहब की कॉल के ऊपर, क्योंकि हुकूमत हर बार हमें धोखा देती है। पिछले साल IPPs के हवाले से हमने 14 दिन का धरना दिया और इन्होंने हमसे मुआहदा किया कि हम 6 माह के अंदर अंदर कौम को रिलीफ देंगे। और अब जुल्म की बात यह है कि जो 200 यूनिट वाले जिनको सहूलत मिल रही थी, 300 यूनिट का नाम लेकर और हजारों रुपए में बिल जो है उनका मुंतकिल कर दिया है। पेट्रोल की कीमतें रातों रात बढ़ा दी जाती हैं। जरूरियात जिंदगी की जो कीमतें हैं वो होश रुबा हैं। आम आदमी का जीना दोभर है। ऐसे में जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बैठेगी जब तक हुकूमत जो है वो होश के नाखून न ले। अमीर जमात हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही। सूरत हाल ये है कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान साहब के कॉल पर आज हम ये सरापा एहतजाज हैं। अवाम की नुमाइंदगी सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है। जो इस महंगाई और इस बेरोजगारी और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इसमें अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो वह हाफिज नईम उर रहमान की है। आवाज़ कोई खूबसूरत है तो वो ये है। हम चाहेंगे कि मेरे कैमरामैन इसको दिखाएं कि बच्चों की मुस्कुराहटें भी छीन ली हैं, महंगाई ने तालीम छीन ली है। और जब किसी के बच्चों पे ज़ख्म पहुँचे तो हुकूमतों को समझना चाहिए कि हमारे बच्चों पे ज़ख्म पहुंची है, हमारे बच्चों को तकलीफ हुई है। महंगाई में कमी का मुतालबा किया जा रहा है जमात इस्लामी बहावलपुर की जानिब से। जी महमूद सही, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कि सरकारी मुलाजमीन के मसाइल बढ़ने लगे। मुलाजमीन के पेंशन, ग्रेजुएटी, लिव इनकैशमेंट का मसला ताहाल हल न हो सका। मुलाजमीन हुकूमत पॉलिसीज पर नाला दिखाई देते हैं। इसी पर बात करते हैं ऑन अब्बास से। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो तमाम सूबों में सिवाय पंजाब और इसके साथ साथ वफाक के भी जो मुलाजमीन हैं उसे 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, उसके साथ साथ लीव इनकैशमेंट की सूरत में अभी जो है उन्हें अमरात दी जाती हैं। लेकिन अगर हम पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी बात करें तो उनके डिस्पैरिटी अलाउंस के भी मसाइल हैं, लीव इनकैशमेंट के मसाइल हैं, ग्रेजुएटी के मसाइल हैं। 17A एक्ट रूल जो है उसके भी खिलाफ जो अक्सर ही सरापा एहतजाज रहते हैं। मुलाजमीन जो है हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ये तो एडिशनल, वैसे तो हमारी जो बेसिक है उसमें जैसे इन्होंने 10% बढ़ाया था, जो अगर हमारी बेसिक बढ़ाते तो ये 40% तक बढ़ा सकते थे। तो उसमें तो कुछ मुलाजिम को फ़ायदा हो जाता है, ये डार्क लीफ होता है, फिर ये बेसिक में जम हो जाता है, मुलाजिम को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ये हमारे साथ है तो मजाक, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर इन्होंने हमारी सपोर्ट की है, लेकिन उसमें सिर्फ पंजाब रह गया है, वफाक ने की है, तीनों सूबे दे रहे हैं। और जो पंजाब हुकूमत है वो बिल्कुल हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम चल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं दे रही। और उन्होंने अपनी पॉलिसी हमारे साथ वाज़ेह नहीं की। आया कि क्या पंजाब के मुलाजमीन काम नहीं करते, किस गुनाहों की उन्हें सजा दी जा रही है, तो मेहरबानी करके हमारी डिस्पैरिटी अलाउंस हमें दिया जाए। और जो बेवा है, जो औरत है, उसको ताहयात, जो आपकी बेटी है, माँ है, जो बहन होगी तो उसको ताहयात पेंशन दी जाए। जो है पेंशन बेवा को और जो सरकारी मुलाजमीन जो वफात पा जाते हैं उनकी जो आगे बेटियों को मिल रही होती है वो ताहयात दी जाए, ना कि जो है 10 साल तक देने के बाद उसे ख़त्म कर दिया जाए। ये मुतालबा है सरकारी मुलाजमीन का। जी ओन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जबलपुर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मैंगो फेस्टिवल का आखिरी रोज। फेस्टिवल में ज़राअत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन शरीक। मैंगो शो में शिरकत के लिए शहरियों का DHA का रुख। फेस्टिवल में माहिरीन आम की फसल को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से रहनुमाई दे रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। में लख बाग के नाम से, और उसके अलावा हयात बख्श बाग ये बहादुर शाह जफर ने बनाया। और उसके बाद मैंगो प्लांटेशन शालीमार गार्डन में आप आज भी अगर जाए, यू कैन सी दी मैंगो प्लांटेशन शालीमार गार्डन 1640 में बना था। उस वक्त के लगाए हुए पौधे, सम ऑफ देम दे आर सर्वाइविंग टिल टुडे। ये डिफरेंट पोइट्री है, उर्दू की शायरी में आम राम के बारे में बहुत बड़ा उसका ताल्लुक है। ये अगर हम अपने पास पाकिस्तान बनने के बाद हिस्टोरिकल डाटा देखें तो 1965 में पायलट पब्लिक स्कूल लाहौर में मैंगो एग्जीबिशन हुआ, जहाँ पे ये एक ज़राई जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो ज़राअत नामे के नाम से बहुत अरसे से फोर्टनाइटली बुलेटिन जो वो निकालता है। उस बुलेटिन में मेरे दादा अबू मलिक फैज़ बख्श रजवाना, उनके नाम से रिपोर्टेड है
62 mango varieties, they were displayed under the name of Faiz-e-Aam Nursery, right? So this is the largest collection we see 1965 and onward. उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं हामिद दुरानी साहब, अल्लाह ताला इनको मेरी रहमत करे, मेरे दादा भी बहुत हो गए, ये भी बहुत हो गए। इन्होंने 200 वैरायटीज़ का एक कैटलॉग जो है वो सलाए आम, एक आम की किताब में जो है वो कैटलॉग किया। लेकिन इसके बाद 2010 में हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें सुल्तान काबूस ऑफ ओमान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहा कि जी पाकिस्तान में जितनी वैरायटीज़ हैं उनको हम मैंगो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द वर्ल्ड में कैटलॉग करना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट डॉक्टर इकरार जो साबका वाइस चांसलर दरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और मैंने मिलकर किया। उस वक्त जब हमने 2010 में सर्वे किया 262, फिर 200 और हमें 65 वैरायटीज मिली 2010 में। इसका मतलब ये है कि जर्म प्लाज्म जो है वो इरोड हो गया बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ वो जो शिफ्ट ऑफ ट्रेंड है कि पहले होता था कि जी नंबर ऑफ वैरायटीज कितनी, अब है कि पैसा कितना कमाते हैं, तो उसने चीज़ों को चेंज कर दिया। ताहम जो इदारे जैसे DHA बहावलपुर है, DHA मुल्तान है, या मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका काम यह है कि जर्म प्लाज्म को कंजर्व करें, क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा पैसों की तरफ देखना नहीं है, उनका काम कंजर्वेशन भी बनता है। ओके जी, ये मैंगो हार्वेस्ट कैलेंडर जिसमें हमारी कमर्शियल वैरायटीज़ है, इसको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। वैरायटी मालदा कभी आया करती थी, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर डिमांड इन द मार्केट। अब ये वैरायटी बैकग्राउंड में जा रही है, अब इट इज़ नो मोर डिमांडेड, नो मोर ग्रोन एंड नो मोर मार्केटेड। लेकिन बहरहाल ये एक वैरायटी है जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। देन कम्स दुशहरी। दुशहरी एक ऐसी वैरायटी है जिसने बदलते वक्त के साथ अपने आप को मनवाया है। अगर आप मैंगो ऑर्चर्ड प्लान कर रहे हैं, अगर आपसे मैं अगर 100 एकर्स के लिए कहूँ तो 15 एकड़ दुशहरी या 10 एकड़ दुशहरी अपनी जगह बनाती है लाजमी, क्योंकि ये अर्ली सीजन में ऐसी सस्टेनेबल वैरायटी है जो क्लाइमेटिक चेंज में अपने आप को सस्टेनेबल इसने रखा है। बदलते मौसम और बदलते तगय्युरात के साथ इसने अपने आप को मेंटेन रखा है। इट इज स्टिल प्रोडक्टिव, स्टिल अर्निंग लॉट ऑफ मनी। सिंदड़ी यकीनन आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एक ऐसी चॉइसेस्ट वैरायटी है। कोई भी ऑर्चर्ड हो, वो कमर्शियल हो या सेमी कमर्शियल हो, सिंदड़ी के बगैर गुजारा नहीं। अगर उसी में 10 एकड़ आप दुशहरी लगा रहे हैं तो 40 एकड़ कम से कम आप सिंदड़ी लगाएंगे। लंगड़ा। लंगड़ा एक ऐसी वैरायटी है जो दुशहरी की तरह जाते जाते दोबारा वापस आ रही है। जो आम के शहदाई हैं वो इसको समझते हैं, इसका टेस्ट, इसका फ्रूट वेट, और ये अपने वेट की वजह से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन ये देता है कि ये मार्केट में आपको रीजनेबल रेवेन्यू देता है। इसकी भी जगह बनती है सिर्फ 5 एकड़। उसके बाद अनवर अटोल को 2000 से पहले यानी 1990s ऑनवर्ड क्लाइमेट चेंज में कुछ ऐसी तब्दीलियां आई यहाँ पे कि ये फ्लावरिंग प्रोडक्शन छोड़ गया था हमारे पास, और इवेंचुअली इसकी डिमांड तो हमेशा से रही है। चौसा, अनवर अटोल, ये हमारी वैरायटीज़ की पहचान है। लेकिन इसकी फ्लावरिंग कम होने की वजह से इसके जो ऑर्चर्ड्स थे वो कटना शुरू हो गए। अब देर आर सर्टेन एवेन्यूज कि इसकी रिवाइवल जो है वो हो रही है। अब इसका फ्रूट जो है वो बहुत हाई फ्रेश मिलता है, और लकीली जो ऑर्चर्ड्स हैं दे हैव बिकम प्रोडक्टिव। तो अनवर अटोल की भी 10 से 15 एकड़ की जगह